All right, the next one says cautionary tale avoiding a costly scam. Hi Junaid, I hope this email finds you well. My name is ABC and I live in Mumbai. I'm a big fan of your content and I listen to your videos religiously. I want to share a recent experience I had while in Delhi in hopes that it can serve a lesson for others to stay vigilant. During a short evening visit to Delhi, I had a couple of hours to spare. Against my usual judgment, I decided to try something new and contacted an escort service I found online. A local website provided a number of आगे ना sex सुक्स की problem इंडिया से भी आ गई. A local website provided a number for a pimp who sent me pictures of women to choose from. They agreed upon the deal was 10,000 INR for 2 hours. कितना हो गए मैं हिसाब कर रहा हूँ महंगा यार. He instructed me to inform the hotel front desk to send the woman directly to my room, which I regretfully did. Oh, डायरेक्टली भेज दिया. बेटा आईडी करानी होती है भाई, आईडी. अभी मुझे कैसे पता. भाई दुबई के होटल्स में रात को 2 बजे 3 बजे के टाइम दिस लाइक अ होल यू नो एस्कॉर्ट ऑफ एस्कॉर्ट्स जो कि अपनी आईडी लेके खड़े होते हैं क्योंकि उनको ऊपर कमरे में जाना होता है बिकॉज दुबई इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. बहुत सारे क्राइम्स होते हैं. सो दे नीड टू मेक श्योर कि भाई कमरे में आया कौन था. सो यस, और ये हर जगह होता है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता होगा, आई एम श्योर. When the woman arrived, she was not the same person from the pictures. Her attitude was unpleasant, and her first demand was full payment upfront. Reluctantly, I handed over 10,000 rupees as agreed. Shortly after, the pimp called claiming the actual deal was 20,000. That's when I realized I was being scammed. The situation quickly escalated. The woman became loud and threatening, and the pimp started making calls warning me that he and his associates would come to the hotel and resolve the matter if I didn't pay the additional amount. Knowing how precious such situations can be, precarious, not precious, precarious situations can be in India, especially with the risk of false accusations, I felt trapped. And also, आजकल भाई फ़ोन है, फ़ोन लेके वीडियो बना दी कि ये देखो मेरे पैसे नहीं दे रहा, and then like the whole world sees it. I tried reasoning with them, but eventually gave her 2,000 more and asked her politely to leave, hoping it would end the ordeal. It didn't. She refused to leave and demanded more money while the pimp continued calling and threatening. जाहिर है when they know कि जब ये threat करने पे दे रहा है तो ये और देगा. They insisted on an online transfer, but I avoided that, claiming I didn't use online payment options. Instead, I pretended to agree to withdraw cash from a nearby ATM. That's another mistake because चल इसकी मैं कहानी सुनाता हूँ. She accompanied me, yes, and during the walk I formed a plan. I started walking briskly, bypassing the nearest ATM, claiming my bank had branch further away. She struggled to keep up, and as I kept walking through small alleyways, she became visibly tired. She was constantly on the phone with her pimp, trying to give him our location. After about 2 kilometers, 2 kilometers चला दिया उसको. I saw an opportunity and I ran as fast as I could. But रनिंग का बेटा फ़ायदा नहीं ना, बिकॉज होटल तो आपका वही है. Putting as much distance as possible between us, once I felt I was safe, I headed back to the hotel, still nervous about the threats. The pimp called again, claiming the woman had access to my room and would wait for me there. Fortunately, when I checked with the front desk, they confirmed no duplicate keys had been issued. Relieved, I quickly packed my belongings, changed my clothes, checked out, and blocked the pimp's number. I wanted to share this to warn others. Scams like these prey on vulnerability and fear of social and or legal repercussions. The scammers count on other victims' willingness to pay exorbitant sums to avoid public embarrassment or police involvement. I was fortunate enough to escape after losing 12,000. 12,000 में कुछ किया भी नहीं. But others haven't been as lucky. Some have faced worse outcomes, even resorting to suicide due to harassment. Please be cautious and avoid getting involved in such situations. It's not worth the risk financially or emotionally. Thanks and regards. अब इसमें बंदा क्या बोले यार, मारने गए थे मरवाए आप. खैर. So, bhai, first of all, nothing is worth your life and respect. So you have to be very, very careful. इस तरह की चीज़ों पे अवॉइड ही करें भाई, ठीक है ना. ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, जस्ट रिजॉर्ट टू दैट. फ्री की होती है, हैंड जॉब इज़ फ्री टू योर ओन सेल्फ. जस्ट डू दैट एंड स्लीप. बट आई अंडरस्टैंड लाइक लोगों की होती है, बट डोंट गो टू दीज लोकल वेबसाइट्स. इट्स ऑलवेज फुल ऑफ स्कैम. सो मैं ये बता रहा था, ये जो एटीएम वाली बात है. सो मैं आपसे अपनी कहानी शेयर करता हूँ. बैक इन द डे आई हैड बॉट सम पॉर्न फॉर माई फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों एक खिदमत खल्क का बड़ा शौक है कि सबका ख्याल रखना है. सो बिकॉज रेनबो सेंटर विच इज़ अ फेमस प्लेस जहाँ पे CDs DVDs वगैरह मिलती हैं, वीडियो कैसेट्स के ज़माने से वो है.
तो मैं वहाँ से मैंने कंटेंट ख़रीदा। दिस इज़ लाइक प्री यूट्यूब, प्री पोर्नहब, जब आपको सीडीज़ लेनी पड़ती थी। सो आई गॉट स्टैश और मैं जा रहा था और फिर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और उन्होंने बोला ओह अच्छा ये निकला है। एंड देन दे टुक मी टू एन एली और वहाँ पे गुड कॉप बैड कॉप, एक कह रहा था कि इसको जेल में डालते हैं, एक कह रहा था नहीं नहीं मान जाएगा राइट। खैर वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा आपको। बात 20,000 से शुरू हुई थी बिकॉज उन्होंने मेरे पता नहीं लाइक एटीएम की रसीद रखता था मैं अपनी वॉलेट में। आई एम श्योर लोग, बहुत से लोग रखते होंगे एक ज़माने में, अब तो खैर फेंक देते हैं। तो उसने बैलेंस देख लिया था कि इसके अकाउंट में है 20,000 रुपये। एंड आई एम टॉकिंग 2003, 2004। 2004 में 20,000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट, लाइक लाख रुपए आज के। सो उन्होंने बोला दो दो दो, खैर फिर उन्होंने बोला कि हमारे साथ एटीएम चलो। अच्छा फिर वो बात आ गई कि जी 5,000 रुपये दे दो। मैं बोला चले ठीक है। उन्होंने बोला मैं बोला फिर ठीक है मैं लेकर आता हूँ। कह रहे नहीं हमारे साथ एटीएम चलो। मैं बोला ठीक है कौन सी एटीएम? कह रहे नहीं हम लेके जाएंगे। एंड आई वाज लाइक अगर मैं इनके साथ एटीएम गया राइट और बात हमारी 5,000 की हुई है और मैं 5,000 पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा हाथ रोक के 10,000 दबा दे, मैं क्या कर लूँगा? पुलिस को चमाट तो नहीं मारूंगा मैं? और ये वो उस ज़माने का पता नहीं कैमरे होते थे नहीं होते थे, होते भी होंगे तो यार मैंने रिपोर्ट तो पुलिस को ही करना था ना, तो पुलिस ने क्या ही कर लेना था। तो और फिर ऐसे केस में वो फिर आप ही शर्माते हो ना, बेटा पकड़े किस बात पे गए थे, मैं क्या बोलता वहाँ जाके, ये इस चीज़ पे भी तो काउंट करते हैं शेम पे कि ये क्या ही बोल के आएगा थाने कि मैं मेरे से फ़ोन पकड़ा गया, तो पहले तो मुझे ही डालेंगे थाने में कि भाई तू ये एडल्ट कंटेंट क्यों खरीद रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। एनीवे सो वो फिर मैं नहीं माना, मैं यार एटीएम तो मैं नहीं जा सकता, तो जाऊंगा तो फिर मैं अपने एटीएम पे जाऊंगा। एंड आई वाज थिंकिंग कि वो मेरे मामू के घर के गली के कोने पे एक एटीएम है। एंड आई वाज लाइक वो जैसे ही अगर मुझे इफ़ दे अग्री कि वो वहाँ चलते हैं, मैं उतरूंगा बाइक से और मैं भाग जाऊंगा। और वो रश वाला एरिया है और वो मैं मार्केट में यूँ मुझे आई नो ऑल द शॉर्टकट्स, और मैं करके मामू के घर चला जाऊंगा, वहाँ चुप कर बैठ जाऊंगा, फ़ोन बंद कर दूंगा, क्या ही कर लेगा वो? घर थोड़ी आएगा पीछे मेरे, या वो 4-5 हज़ार रुपये के पीछे मेरे घर थोड़ी आएगा, वो तो मेरा घर तो दूसरे एरिया में था राइट। तो दे वर लाइक कि नहीं तुम्हारे एटीएम नहीं हमारे एटीएम चलो। सो आई नेवर अग्रीड। वो मुझे बाइक पे बिठा के घुमाते रहे 4 घंटे। ये पूरा एक इंटेरोगेशन चली है। और पता है फिर मुझसे कितने पैसे लेके गए? 50 रुपये। 20,000 से बात शुरू हुई थी, 50 रुपये में छोड़ा। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पास जेब में 70 रुपये थे। उन्होंने बोला 20 रुपये का रिक्शा लो यहाँ से घर जाओ, वापस नहीं आना यहाँ। एंड दे गेव मी ऑल द कंटेंट, कह रहा रख लो सीडीज। मैं ओके थैंक यू। सो यस एटीएम तो भैया कभी भी नहीं जाना। दूसरी चीज़ ये कि ये जो है ना रिसेप्शन वाली चीज़, ये गलती आप कभी भी ना करें। अगेन आई एम नॉट एडवाइजिंग लोगों को कि आप प्रोस्टिट्यूशन करें, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ये ना करें। मगर द सेफ थिंग्स टू डू इज़ कि भाई हमेशा एक तो आप अच्छे होटल में हो खुद, ठीक है। जो स्लीजी होटल होते हैं इनके स्टाफ भी मिले हुए होते हैं, वो और आके डराते धमकाते सर पुलिस आ गई है, सर नीचे मसला हो गया, ये हो गया वो हो गया राइट। तो अगर अच्छे होटल में हैं तो भाई मेक श्योर दे सबमिट देयर आईडी। वहाँ होटल चलते ही इन चीज़ों पे भाई, तो वो जज नहीं करेंगे आपको कि ये लड़की क्यों आ रही है। वो ये कि भाई आईडी आपने सबमिट करा दी, नाउ दे आर एट, अब वो बॉल आपके कोर्ट में ना कि यू हैव देयर डिटेल्स इज वेल। फ़ोन का क्या ऐप पे फ़ोन बंद कर देगा, क्या ही पकड़ोगे उसको या क्या ही ट्रेस करोगे, बट उसकी आईडी वगैरह है तो लाइक यू हैव समथिंग ऑफ देम। सो इसलिए आईडी वगैरह ज़रूरी होती है। और ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए डायरेक्ट रूम में आ जाए। देर आर सम होटल्स जहाँ पे एक्सेस ही बेसमेंट से देते हैं इसी वजह से। सो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इस तरह की चीज़ों में मिंगल नहीं कर सकते, और फिर ख़वातीन घबराती भी हैं कि भाई रिसेप्शन पे मैंने नहीं जाना, तो वो बेसमेंट पे लिफ्ट का एक्सेस होता है कि गाड़ी रोकी वहीं से बेसमेंट से सीधा कड़प ऊपर। वो इसलिए होता है कि ताकि उनके रूम ज़्यादा से ज़्यादा रेंट आउट हो राइट। तो जितनी कम हर्डल्स होंगी उतने रूम रेंट आउट होंगे। तो भाई ये ना ही करें, और हमेशा ना कोई भी इस तरह का डिसीजन लेने से पहले ऑलवेज जर्क ऑफ सो यू गेट पोस्ट नट क्लैरिटी, और फिर डिसाइड करें कि करना है कि नहीं करना। और अगर आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा सो देन गो टू थाईलैंड। और थाईलैंड में जो भी है वट एवर हैपन्स इन थाईलैंड स्टेज इन थाईलैंड। फन फैक्ट अबाउट थाईलैंड, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, 99.9% people, in fact 100%, would write Bangkok. It's not Bangkok, which is funny. It's not Bangkok. Bangkok is not the official name of Bangkok. It's Krung Thep. And Krung Thep is basically a short form. It is actually, let me read it out to you. Mr. Facts की मशीन स्टार्ट हो गई है। क्रोम थैप फुल नेम, इन्होंने इसका नाम,
ये वही वाली चीज़ है जिस तरह चाइना में एक नाम आपका होता है, चाइनीज़ नेम एक आपका नाम होता है, नॉन चाइनीज़ नेम, राइट? जेम्स, वो जेम्स नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। इसी तरह क्रोंगथेप जो है वो उनके लिए है, लेकिन पब्लिक के लिए उन्होंने बैंकॉक रख दिया। सो इसका पूरा जो नाम है वो है क्रुंगथेप महानाकहोन आमोन रतनाकोसेन माह, ये ही चल रहा है, माहेंथारा आयुथाया महादिल्लोक फोप नोपोहारात राताचाथानी बुरियम उदुमर राचानी ये चलता जा रहा है। इट्स द लॉन्गेस्ट नेम ऑफ एनी सिटी इन द वर्ल्ड, विच इज बैंकॉक का असली नाम क्रुंगथेप। सेकेंड क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज द लॉन्गेस्ट नेम एवर? आजकल का नहीं पता, बट अप until like 5 years ago it was चमिंदा वास। तो चमिंदा वास का अगर आप फुल नेम डालेंगे तो गूगल पे क्या क्या आ जाएगा। अब ये बंदा बोलेगा यार मेरा 12,000 लग गया, ये मेरे 12,000 को लेके फुल नेम बता रहा है क्रुंगथेप। इसी तरह डाइडो, माय फेवरेट सिंगर, उनका जो असल नाम है इट्स नॉट डाइडो, इट्स फ्लोरियन क्लाउडी बोनोवेल ओ मैली आर्मस्ट्रॉन्ग। सो यस मिस्टर फैक्ट्स, ऐसे नहीं बोलते मुझे। सो कमिंग बैक टू 12,000 रुपये का झटका, इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना। लाइक 12,000 में इतनी सारी टेंशन, भाई नथिंग इज वर्थ योर लाइफ एंड रिस्पेक्ट, यू नो थिंग्स कैन गो इधर वे। अगर वो एली वे में जहाँ आप जा रहे थे पीछे से पिम्प भी आ जाता चाकू लेके तो क्या ही कर लेते आप। सो प्लीज़ अपने आप को इतना जोखम में ना डालें, इतना रिस्क ना लें। आई अंडरस्टैंड नीड ऐसी ही होती है कि संभाला नहीं जाता अपने आप को, इसका चक्कर रोड़ी का भी शक्कर, बस ये याद रखना। खैर, सो गुड लक भाई, एंड दूसरे जो लोग सुन रहे हैं इन चीज़ों से दूर रहें। इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे इतनी खुल के एक्सेप्टेंस नहीं है इन चीज़ों की, तो वो दे कैश ऑन द फैक्ट ऑफ शेम, दे कैश ऑन द फैक्ट ऑफ बदनामी। तो वो फिर पुलिस आपको जब छापा मारती है, आज भी मैंने देखा न्यू ईयर पे किसी इस्लामाबाद के किसी होटल में छापा मारा और इतने सारे लड़के लड़कियां बरामद हुई और शराब की बोतलें ला के रखी हुई हैं। यू डोंट वांट टू एंड अप देयर, सो प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।